I want to say, Yeah. I want to say that every day is going on so beautifully only because of the Hoponopo prayer and wishing good for everyone. Mm. Things are just happening the way I want it to happen. It's really like a magic. The same things earlier, the same things earlier. I used to be so stressed Yeah. and so many questions to it. Will it happen? Will they agree? No, no question. It's just going to happen. It is happening. Yes. It's and everything happens so smoothly. I find everybody agrees so sweetly. And it's really a big blessing. There is really a lot of power and blessings in gratitude. Yeah. Gratitude, Ho'oponopono prayer means like forgiveness. Ho'oponopono includes everything. So forgiveness, gratitude, and along with the realization that we are the creators of our lives. So we should be focusing on the thing that we are thinking and Mm, speaking and feeling mm, about what we desire in our life. Now we should not mm. just let the thoughts go on haywire. So be Yes, as attentive and aware about our thoughts as possible, which yes. like we cannot catch all our thoughts, but we Mm, can make an effort to be aware of what we are mm, feeling. So in yes, between every now and then, if we just focus on mm, the state of our feeling, mm, we will mm, understand the kind of thoughts we are going on in our mind and what are we feeding to our subconscious mind. So mm, ultimately, if we are in that practice and in that awareness regularly, slowly mm, things start changing and then we start manifesting. Manifestation becomes more easier and smooth that way. mm, Yeah, mm, because we are in any case manifesting this way. When we are aware, then we change our thought patterns and feeling patterns, mm, and manifestations happen according to our desires and choices, mm, that the way we want them to unfold for us. mm. Oh, Yes, yes. yeah. Thank you so much. Yes. Also, we are, as everyone says, you have to observe more than absorb anything. So Yeah. when you observe, you can see how the world around you Mm, is really struggling with, they're struggling with their ways of thinking and all. Now that I've become aware of my thinking, I mm, can see I was also in this place once earlier, but mm. now this kind of wisdom of just observing your own self, your thoughts, Yeah. how much it helps really to Yeah, a yeah, great Lord, extent. Lord. Like Yeah, yeah. everything is there. All Mm, answers lie there. The moment you become aware of your own self and yes. about, it is like uh what are the words that Jiddu Krishnamurti ji used to say, seeing without, any judgment, being in the moment and seeing the things afresh. Because every Yes. moment things are appearing in a fresh way, but we are Mm, seeing it from that old perspective with yes. which we have Yes. experienced that person or that thing in Mm, the past. We are seeing that person with that judgment, but at this moment, that person is absolutely fresh, absolutely new. Whatever mm, his behavior was even a minute back, he is a different person now. He's changed. His physical level, scientifically also physical level, maybe his body has changed because 25 yes. million cells died and 25 million new cells grew up within him. Mm, So his mm, mindset also may be different. So every mm, moment, every person is different, but we are seeing mm. them from the old perspective, from the Good. old way of thinking. Very true. If we Very true. change our way of thinking and seeing the people in the fresh light, that is when this is they practiced, but this is Yeah. what they have taught us. And this, if we incorporate any of like any proportion and ratio of this practice into our life, we will see changes definitely. Mm. Yeah. Like today, it's 3-5. It's okay if I just share. It Yeah, was yeah. at the hospital. I went to another hospital Hmm. because family didn't have anyone to, stay with them. So I said, I'll come there and relieve you for a few hours till you finish all your work. And it was a same double room. So I was sitting down Hmm. and I could hear the other person was going through a chemotherapy. The Hmm. wife is telling her husband something, Hmm. but about the drip. But you know what? I noticed that he is not listening to her properly and he's answering her something else. Hmm. And that then I realized, see, it is a trigger from that side Hmm. to her that, I'm going through this, but he's not understanding me. So then I realized this is how we pick up, problems. Hmm. So how we could, but I could see that she was very upset. She was going through so Hmm. much of pain that he's not understanding me. And Hmm. it was just for him, he's answering her. But what he's answering her was totally different from the question she was asking him.
Yeah. And then, this was like a big observation for me, Mm, how problems take place. And that is why everything as around, as you said, is a Maya. It's mm, an illusion. So it's so important to have our own wisdom to understand ourselves and to understand others. So mm. if I said to myself now, if I were in her place, I would just, it would be very difficult. But now with the understanding and observation of everything, can Mm. understand that, yes, this person is not listening to me. He's not able to give me the answer I want. And But he is also, he this, or she, whoever, now you're talking about two people, they are all caught in the web of their own thoughts, their own problems, which are, most of it is, self-created only, our mind only is creating. There yes, was no yes. need for these problems to be unfolding in our lives. Yeah, We yeah, have created them first exactly. by manifesting, Mm, and then now, right now also, we are not understanding, and we continuously letting the thoughts happen. Now these days, since I'm reading this New Earth book by mm, Eckhart Tolle, so yes. by bit, maybe a few pages I'm able to read every day. So Mm, I'm just able to, observe, how are these thoughts arising? If I focus my mind, close my eyes and just focus, then there is no thought. And suddenly something comes, mm, again, my mind goes anywhere, some memories, and where it is mm, going, some memories or some mm, imagination. Either, mm, either there is a memory of the past or there is an imagination in mm, my mind. So through that imagination and memory, these new thought is arising. And then I'm mm, able to see ki kaise aa gaya. And then again I say, oh, again, see, mm, you create a new thought. Go back, go back, mm, go back to your thought. Go back to your breath. Go back mm. to being zero. So even Go if back to your it breath. happens only for a fraction of a second or a few seconds, then, Mm, at least I'm able to see how it is happening now. Otherwise, it was mm. not possible up until Yes, now. yes, yes, yes. So, Because of the wisdom that we are learning now, we're able. So in this case, I was thinking, uh, the lady who's sick and who's being triggered by her husband who's not listening to her, it hmm, would be for her if we have this wisdom that we are getting now from all the teachings from you, Shreyans, and hmm, all the lovely books, to hmm. just understand him and to go back to your breath, and just that would be, it's very difficult to put into practice, right? Yeah. So what I am suggesting, like you being in this, health profession, and Yes, as yes, Sheila ma'am also, she is in that area. yes, yes. Please Mm. pass on these recordings to them. Yes, Everybody yes, has a I'm phone these doing that. days. Okay. So once they listen to I'm them, doing at that. least I'm their doing that. mind cools down, calms down. They start doing basic level Yes, gratitude also with each passing day. It grows on. See, we haven't even completed 1 month's journey, and so many of you are already, quite deeply into it. So that is going to yes, happen to those patients also. And the more they do it, you will see magically how their, reports start changing, how their health starts changing if they do it at a basic level also. So this will yes, happen not only by telling them yourself, of course, your saying is also important, and you're sharing experience, what you have gained all these days, yes, and then yes, sharing the recordings with them. Both the yes. things together, that it's going to help them that way. Yeah, yeah. Thank you so much, Chetna ji. Yeah. So yesterday when this breathwork session was going on, Shans has just returned from US. So he could not come yesterday also. So whenever, when he is there, of course, he comes these days quite rarely, these days, once in Yes, maybe 10-15 days or even less sometimes. mhm, So whenever he is there, so many people are waiting for him to, come so that they could ask their questions or whatever. But when he is not there, and then I ask them, Ki, please do come up with any sharings and all, especially after the breath work. So mostly either, only handful people who raise their hands, they want to their share. Those same people every time. So yesterday when I said, when you do this, what happens? You are motivating other people also to, mm, get into these practices. People who may be hesitant about not having started, they are not willing, or maybe something, dilly dallying or procrastinating ki aaj nahi kal kabhi we will start. They are not regular with this. So once you start doing your sharing, you are making that contribution in other people's lives. So there were so many sharings yesterday, so many people raised their hands when they knew, okay, yeah, of course I can contribute in this manner also. So, how people get motivated, different ways to, see things. The same thing has to be seen from different angles. So it mhm, worked. Like when I told them yesterday, they were
5-6 people who raised their hands, and they all came up with their sharings. Yeah, I found it so good and so good. So people who are, even joining, even if they are joining on Zoom or YouTube, some of them may be regular, some of them may not be regular, or, sometimes they do once or twice and then they leave, and sometimes, some laziness creeps up. So not everybody is very regular, but with regularity only we get the result, no? So only when these sharings are done, that they will be able to be motivated, yeah, so that they can continue regularly with this journey. You know. So thank you, Susanna ji, for sharing. Thank you. Thank you. Thank you so Yeah. much. And Chetna ji, it is I actually who have learned so much from the sharings of other people. When I come for the, It is when I very come, important. Sharings are the most important. Whatever I'm explaining, now you started sharing. There are other people also sharing, and they're writing in the group. See how slowly people are getting motivated. It, takes some time, but sharings are the most, I feel they are the most important part of these learnings, Yes. Everybody you. learns. Even I do learn, from every sharing, even today, आज भी कभी कुछ ऐसा हो जाए, तो still it gives me some angle. Okay, yeah, things can be seen from this angle also. Things can be applied in this manner also. The same thing, same gratitude. I can do it this way also. है ना? Thank you. Thank you. Okay. Chaliye, let's start now with our chapter. Today is day 24. Oh God, which one have I opened? Oh, which one is this? The magic wand. Is it Correct, showing? it is. But I'm Yeah, correct. not able to see that one. I'm able to see something different. No, correct, Chetna ji. Day 24, the magic wand. Yeah, but you all can see it, but I can't see it, I can see something else. Okay, let me just go back. Because I have opened a new earth book also, I'm able to see that one. I'm not able to see the magic wand. So now is it visible? Yeah. Visible now? Okay. Great. So today we have this day 24, the magic wand. Okay. So you all can see in this picture, there is, some, I feel this is some chair type of a thing on which there is this bag lying, and then there is this hat lying, and there are certain things, and then this magic sprinkles are also, and then there is a wand here, just like a magician has a wand. This wand is lying here, and this is denoting what? That now, after all these days practices, we have been through 23 days. Now we have become those magicians, alchemists. Yesterday when we read, no, when you get to the depth of, being grateful for the air that we are breathing in, and for the elements, 5 elements, and for every little thing, for all the natural forces, for a universe, for everything, then we get to that level of being being grateful, and expressing our gratitude, and understanding their value, and getting to the depth of all these things, and actually appreciating their existence, and appreciating their role into our existence. Then we are reaching that level that we have acquired the power of being an alchemist. Alchemist one means the one who is able to turn anything that he touches into gold. So now we have acquired that power. We have become that alchemist or a magician, now that we have been given with this magic wand, which we can use for anybody and anything, any person whom we know, who is close to us, who's who's in among our known people, and for whom, there are so many questions, when we are, during the sessions also, so many people ask about if somebody is going through this finances challenge, money challenges, किसी का health का problem होता है, किसी का क्या problem होता है, दूसरों के लिए हम लोग जब पूछते हैं ना कि हमारे
फैमिली में इसको ऐसे हो रहा है या हमारे फ्रेंड्स में इसको ऐसे हो रहा है, तो उसको मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ. सो दिस मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस इज फॉर देम नाउ, कि उसके लिए कि नाउ हमारे अंदर वो पावर आ चुकी है कि अब हमको इतनी प्रैक्टिसेस करने के बाद हमारे अंदर में वो पावर आ गई, हमारे पास वो मैजिक वॉन्ड आ गया है जिसके थ्रू, जिसको यूज करके हम दूसरों को के लिए वो ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स करके उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, उनकी लाइफ में एम्पावरमेंट ला सकते हैं, ब्लेसिंग्स ला सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं. सो हु वुड लाइक टू रीड टुडे? Anybody, please do raise your hands. Anybody who wants to read? Have you ever wished you had a magic wand so that you could just oh, anybody, please raise your hand, then I will unmute you all. Sheila ma'am, okay, please unmute yourself. Day 24, the magic wand. Hmm. Have you ever wished you had a magic wand so that you can just wave your wand and help people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you frequently want to help another person, Fervently. fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct the power with gratitude, you really do have the magic wand that can help the people you care about. Energy flows where your where your attention goes. And so when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said, "Thank you," before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, 1955 to 2003, personal development coach. Yeah, please hold. Yeah. Once. So have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. Now, what is this life's real magic wand? Up until now, we have been practicing on a daily basis, for something or the other, including from the beginning 12 days for our past and then 10 more days for our future. And now we have started, being grateful for various other things, including 5 elements and the natural forces which are supporting our life every moment. So now with continuous practice, each one of you must be noticing that, most of the time of the day, you are in that blissful state of mind, in that state of mind where now your complaints have started receding, slowly, even if the complaint is rising, anger is rising, tension is rising, worry is rising, fear is rising, you are able to control it for a while. It rises in head, and earlier it may be, lasting for maybe days and months. Now it's, just doesn't last as much as long. So now you're able to, just be aware about it, and then immediately are able to replace it with, the gratitude or the blessing. So we have started being in that space. किसी को देख के अभी हमको उतना, जल्दी गुस्सा आ जाता, पहले आ जाता था गुस्सा, अब वैसा गुस्सा नहीं आता हमको. या किसी को देख के किसी की जरूरत होती है, नाउ वी हैव स्टार्टेड डूइंग मैजिक डस्ट आल्सो. एनीबॉडी जिसको भी हमको देखने में लगता है कि थोड़ा सा उदास है, तो हम लोग मैजिक डस्ट भी कर देते हैं. या पूरा दिन हम अपनी हेल्थ के लिए बार बार अपने लिए थैंक यू बोलते रहते हैं, या जितना भी हमारे घर में जो भी आ रहा है उसके लिए हम हमारे मुंह से थैंक यू निकलने लगता है. फॉर रिलेशनशिप भी हमारी कंप्लेंट्स अभी कम होती जा रही है. अब हम लोगों को उसमें इतनी प्रॉब्लम्स दिखती भी हैं, तो वी आर एबल टू कि ठीक है, वट एवर इट इज, मे बी इट इज माई डूइंग, वट एवर इट इज. अब हम लोगों का उस पर उतना फोकस हम लोग नहीं रखते, हटा लेते हैं. तो होल डे हमारा धीरे धीरे करके हमारा बीइंग चेंज होता जा रहा है. सो दैट इज व्हाट व्हेन अब इतना स्टेट तक हम जब आ गए, हमारा अगर हमको ऐसे कोई अननेसेसरी फोन कॉल भी आ जाता है, जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह से भी आता है, तो नाउ वी हैव लर्न टू हैंडल इट मच
decent way, much loving way अगर आ गया, so I hope you all must be able to identify what I'm saying, इससे आपको लग रहा होगा कि yeah, these changes are happening in your life, or in your mindset, or in your behavior, or in your dealing. If somebody is calling up from the call center, earlier we used to be getting so upset and will bang the phone, why you keep calling, but now भी हम लोग प्यार से बात कर लेते हैं ना कि okay, जब जरूरत होगी हम आपको we will call you back, okay, so we will let you know when to call and all. So our way of behaving with other people, just because we are in this practice of gratitude on a day-to-day manner, in a minute-to-minute, it's becoming our habit, is changing. हमारा बीइंग चेंज हो रहा है, हमारी लाइफ चेंज हो रही। तो हैव यू एवर विश्ड अब हमारे हाथ में कभी ऐसी वांट हो, ऐसा कोई जादू की छड़ी हो जिसको कि घुमा के हम अपने ऐसे लोगों की हेल्प कर पाए जिनको कि हम हेल्प करना चाहते हैं, जो किसी भी तरह के डिस्ट्रेस में हो सकते हैं। किसी का हेल्थ का इशू का डिस्ट्रेस हो, किसी का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, किसी का जॉब में प्रॉब्लम हो, किसी का अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप का हो, किसी के घर में बच्चों को कोई इशू फेस कर रहे हो, उनका स्टडीज में प्रॉब्लम हो या उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ गया हो, किसी का कहीं एडमिशन नहीं हो रहा हो, किसी के बच्चों की एंगेजमेंट नहीं हो रही हो। तो ऐसे तरह के बहुत सारे इश्यूज हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं। किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा होगा, या किसी का और किसी तरह का ब्रेक डाउन आ गया। तो ये सब हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, और ये सब दूसरों की लाइफ में जब आते हैं तो हम लोगों को भी कभी लगता है कि परेशानी में अगर कोई है, किसी को हमें शायद हेल्प कर पाए, या किसी के ऊपर बहुत डेट चढ़ गया है, पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है, जिनके घर में प्रॉब्लम फाइनेंसेस की वजह से, पैसे की वजह से उनका लाइफस्टाइल बहुत इम्पैक्ट हो गया है। तो ऐसे देख के हम लोगों को लगता है ना कि उनके लिए हम क्या करें, कि जैसे हमारी ब्लेसिंग से वो किस तरह से ठीक हो सकते हैं। सो टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस विल शो यू हाउ यू कैन यूज लाइफ्स रियल मैजिक वॉन्ड। अब व्हाट इज लाइफ रियल मैजिक वॉन्ड, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि लाइफ का रियल मैजिक वॉन्ड को यूज करके आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस लाइफ्स रियल मैजिक वॉन्ड इज वी आर गोइंग टू सी। व्हेन यू फर्वेंटली वांट टू हेल्प अनदर पर्सन, यू हैव इमेंस पावर। अब ये एक होता है ना कि कोई कोई लोगों के लिए हमको बहुत तकलीफ होती है, किसी को देखा उसके लिए लगता है कि इनकी बस ये तकलीफ कैसे भी ठीक हो जाए, है ना। जैसे द अदर डे आरती वाज सेइंग कि उनके भाई के का किसी ने पैसा लिया, वो उनको वापस नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बहुत तकलीफ हो रही है उनको कि वो कैसे उनको ठीक कर सकती, क्या करें उनके लिए प्रैक्टिस, किस तरह से ग्रेटिट्यूड करें। तो इस तरह के जब केसेस आपके सामने हैं, आप खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं उनकी ऐसी सिचुएशंस देख के। तो उस तरह की फर्वेंट एक अंदर से आपकी दिली इच्छा होती है, शिद्दत होती है आपके अंदर में कि कैसे भी करके मैं कुछ कर पाऊं। अगर तो ये लोग ठीक, इनका जो भी सिचुएशन है, चाहे वो हेल्थ में अगर फेस कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रहा है, उसको इतना प्रॉब्लम आ रहा है हेल्थ की वजह से, उनका लाइफस्टाइल अफेक्ट हो गया है, तो उसको किस तरह से, इस तरह की जब हमारे अंदर से दिली इच्छा निकलती है किसी को हेल्प करने की, बट व्हेन यू डायरेक्ट दैट पावर विद ग्रेटिट्यूड, तब जब ये हमारे अंदर में इतनी स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस होती है कि किसी को हम हेल्प कर पाए, तो दैट विलिंगनेस की वजह से हमारे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है। बट उसी पावर को जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज दिस पावर इज देयर, दिस विलिंगनेस इज देयर कि मैं उसको कैसे हेल्प कर पाऊं, तो इस विलिंगनेस की वजह से हमारे अंदर वो एक शक्ति उभरती है, पैदा होती है, वो ये आपका पावर आ जाती है। उस पावर के साथ जब हम लोग ग्रेटिट्यूड की पावर को और जोड़ देते हैं, then you really do have a magic wand that can help the people you care about। फिर उस पावर के साथ ग्रेटिट्यूड को जोड़ के जब हम वो ग्रेटिट्यूड उसके भेजेंगे, उनके पास भेजेंगे, उनके लिए प्रैक्टिस करेंगे जो आज हम सीखने वाले हैं, तो उसमें और मैजिकल पावर आ जाती है और उसको हम रियली हेल्प कर पाते हैं, और ट्रूली इट इम्पैक्ट्स द पीपल फॉर whom we are going to be using this power। So energy flows where your attention goes, and so when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that is where the energy goes। तो हम लोगों ने बार बार ये पढ़ा है कि हमारा अटेंशन जैसे वो ये आपका डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने ये सीखा, या बार बार हम लोग यही चीज समझ रहे हैं, एनर्जी फ्लोज वेर एवर आवर अटेंशन गोज। जब हम मेडिटेशन करते हैं तभी भी हमें बोला जाता है ना, हार्ट की तरफ फोकस करो, बिकॉज हम हार्ट की तरफ फोकस करते हैं तो मेरी एनर्जी, हार्ट से ब्रीद करो, हार्ट की तरफ फोकस करो। सो जैसे हम वहां पे फोकस कर रहे हैं तो वहां से हमारी एनर्जी वहां पे हमारे हार्ट की तरफ डायरेक्ट होने लगती है। इसी तरह से
जब हम अपनी एनर्जी लोगों की प्रॉब्लम्स की ओर डायरेक्ट करते हैं और इस इंटेंशन के साथ करते हैं, इस ब्लेसिंग्स के साथ करते हैं कि इनकी लाइफ में ये चेंजेस आ जाए, ये खुशियां आ जाएं, इस प्रॉब्लम से निकल के ये इनको सॉल्यूशन मिल जाए, उस सॉल्यूशन का थॉट डाल के, इंटेंशन डाल के जब हम उनके लिए ब्लेसिंग्स करते हैं, उस तो हमारी एनर्जी वहां चली जाती है. दैट इज वेयर द एनर्जी गोज. दिस इज द वेरी रीजन व्हाई जीसस सेड थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म्ड अ मिरेकल. वो जीसस को ये पता था कि वो उनको, उनके पास लोग आते थे तो उनके अंदर में ये पावर थी, उनको ये पता था कि मेरे मेरे के हर एक के अंदर, हम सबके अंदर ही है, और वही पावर अब हम भी यूटिलाइज करने वाले हैं. और लोगों को ये लगता था कि उनके अंदर ये पावर है, वो हमारी लाइफ में कुछ भी मिरेकल कर सकते हैं. तो इसीलिए जीसस हमेशा कुछ भी ऐसा करने से पहले हमेशा थैंक यू करते थे. उनको पता है थैंक यू की पावर एक्सक्यूज मी, थैंक यू की पावर को एडवांस में यूज करके हम मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं, जिसको कि लोग मिरेकल मानते हैं. So gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. तो हम बार बार ये पढ़ ही रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड की पावर को अपने पास्ट के लिए चाहे अपने फ्यूचर के लिए यूज करके, इन एडवांस यूज करके भी हम अपने लिए मिरेकल्स यूज कर सकते हैं. और दूसरों के लिए, दूसरों के भला चाहने की जब हमारे अंदर में वो इच्छा शक्ति जागती है कि दूसरों का भला हो, अपने लिए तो हम लोग जो करते हैं वो करते ही हैं, जैसे बोलते हैं, ये दूसरों को भला करना की इच्छा जब हमारे अंदर जागती है, दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा जब हमारे जागती है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्विस. एंड सर्विस, दिस से सर्विसेज, जैसे श्याम बार बार हम लोगों को बताते हैं, इज द रेंट दैट यू पे फॉर लिविंग ऑन दिस होटल कॉल्ड अर्थ. तो अगर हम हमारे इस ह्यूमन बर्थ में आए हैं और इसमें हमको रह रहे हैं, हमको यहाँ की सारी फैसिलिटीज मिल रही है, इतना अच्छा हमको लाइफ मिला है, तो सर्विस इज द वन थिंग. हर एक जितने भी बड़े बड़े ये हुए हैं, मास्टर्स हुए हैं, मेंटर्स हुए हैं, सबका यही कहना है कि सर्विस, दूसरों की सर्विस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, किस भी तरह से. चाहे हम अपने वर्ड से कर रहे हैं, किसी को एनकरेजमेंट दे के कर रहे हैं, किसी को पैसे से दे के कर रहे हैं, किसी को अपना टाइम दे के कर रहे हैं, किसी को किसी भी तरह से हेल्प कर पा रहे हैं. तो उस तरह का इंटेंशन जब हमारे अंदर में आता है, तो ग्रेटिट्यूड की इनविजिबल बट रियल फोर्स ऑफ एनर्जी कपल्ड विद द एनर्जी ऑफ योर डिजायर, कि दूसरों को हेल्प करने की जब हमारे अंदर डिजायर आ जाती है, वो इच्छा शक्ति इतनी इंटेंसली जागती है, तब हम एक्चुअल में मैजिक वॉन्ड बन जाते हैं, हमारे पास वो मैजिक वॉन्ड आ जाती है. So people who wait for a magic wand will fail to see that they are the magic wand themselves. वो खुद ही, टॉमस लेनार्ड का कहना है कि हम खुद वो मैजिक वॉन्ड हैं. हम दूसरे मैजिक वॉन्ड का इंतजार करते हैं कि कोई और मैजिक वॉन्ड मिल जाए, तो मैं कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा तरीका मिल जाए कि मेरे बच्चे की ये हेल्थ ठीक हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे भाई का ऐसे ठीक हो जाए, कुछ मेरी मदर का ऐसे हो जाए कि उनकी हेल्थ के इश्यूज ठीक हो जाएं, कुछ ऐसा मिल जाए कि मेरी फ्रेंड का जो अपना रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है उसके मदर इन लॉ के साथ या उसके हस्बैंड के साथ, उसमें ठीक हो जाए, या उसके बेटे की कहीं पे एंगेजमेंट नहीं हो रही है तो वो ठीक हो जाए, उसके लिए कुछ उसको सोल्यूशन मिल जाए, कुछ तो ऐसा मिले. कैसे मिले? बट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि वी कैन क्रिएट दैट रिजल्ट फॉर देम, फॉर अदर्स, just as we are able to do it for ourselves by indulging in the practice of gratitude. Yeah, please unmute कीजिएगा शीला मैम. Please unmute If yourself. you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because of has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic word thank you in heartfelt celebrations of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person, and in really you see and feel the reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health has been fully restored, it will guarantee that the grateful you feel is sincere and as powerful as it can be.
to wave the magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be the grateful as they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic word thank you because you have just received the amazing news. If a person you know is going through tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magical wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, and happiness, or all the 3. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. Take the first person, hold their photograph in your hand, and then close your eyes, and for 1 minute visualize you are receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you are involved yourself in your visualization. Open your eyes, and with the photograph still in your hand, say the magic word thank you slowly 3 times for the person's health, wealth, happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for so-and-so's name, health, wealth, and happiness. As you finish with one person, move to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, and happiness to all the 3 people. You want me to continue? 1 sec, let me just see how much. Yeah, finish it off, please. Yeah. You can also use this powerful practice when you're walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, and wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind, wave it by giving heartfelt thanks for the wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical thing about this, it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. Yeah. So, so if you Whole have chapter a is family over. member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, or unhappy in their work, stress, suffering because the relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. किसी का भी कुछ भी हो सकता है ना, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम है, किसी को आप देख रहे हो नीज में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का डायबिटीज का प्रॉब्लम है, या किसी का हार्ट का इश्यूज है, किसी का किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है, बहुत बार बार ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, हॉस्पिटल बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसकी वजह से उनको फाइनेंशियल ट्रबल भी आ रहा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस लग जाते हैं, अनहैप्पी इन देयर वर्क, काम में उनका कंड्यूसिव नहीं है, एनवायरनमेंट इज नॉट कंड्यूसिव, या तो बहुत से बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाती है, या दे आर ओवरवर्क्ड, या ओवरवर्क करना पड़ता है, ओवर टाइम करना पड़ता है, या स्ट्रेस है किसी भी तरह से, कोई भी रिलेशनशिप है कहीं पे जम नहीं रही है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, या बच्चों का आपस में नहीं बन रहा है, या स्कूल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जहाँ पे उनको टीचर्स के साथ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या अपनी पढ़ाई का ऐसा कुछ एजुकेशन के से रिलेटेड कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो कुछ भी, दैट कुड बी एनी काइंड ऑफ अ रीजन, और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि बच्चों में या किसी में भी,
कि they will not be able to perform well and they don't have that kind of confidence in themselves and they are not feeling happy about themselves, about they compare themselves with others, किसी के साथ में अपने आप को compare करके अपने आप को छोटा महसूस करना, फिर उसकी वजह से it is reflecting in their, be it in their education or in their work, and they are all constantly in that space where they are not happy about being what they are doing, whatever they are doing and whatever they are feeling. So suffering from mental problems, either they have some kind of stress going on in their mind जिसमें से वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं, कोई चिंता उनको खाई जा रही है, या feeling down about their life, you can use invisible force of gratitude to help them with their health, wealth and happiness. तो ग्रेटिट्यूड की इसको प्रैक्टिस से को किस तरह से हम कर सकते हैं? To wave your magic wand for another's health, imagine that person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. है ना? तो इसमें क्या करना है, किसी का अगर आपको हेल्थ का कोई किसी का कोई सपोजिंग हार्ट का कंडीशन है किसी का, तो आपके किसी अंकल को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिर सडनली वो बताते हैं कि नहीं, अभी मैंने इतना अपना लाइफस्टाइल चेंज किया था, ये किया था, दवाइयाँ ले रहा था ठीक से, फिर देन मैंने I went for the homeopathic treatment and then I was also doing meditation, I was also doing breath work, and you see within a month मेरी reports में कितना change आ गया, and you visualize this in your mind, है ना? इस तरह से विजुअलाइज करना कि उसने आपको फोन करके बताया या वो आपके घर में विजिट करने के लिए आया आपके घर में, पता है इतना अच्छा हो गया अभी मेरा, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि मेरी हेल्थ इतनी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी, बिकॉज आई ब्रॉट इन अ फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस, मैंने खाने पे कंट्रोल किया, मैंने अपना एक्सरसाइज करना शुरू किया, ये वो किया, अब मेरे को डॉक्टर बोल रहा है सर्जरी नहीं करनी होगी। होता है ना, इस तरह की न्यूज हम लोगों को मिलती है ना, तो इस तरह से विजुअलाइज करेंगे कि हमको वो उसने ऐसे न्यूज दिया है, वो मेरे को घर में आके बताने आया या मेरे को फोन करके बताया या किसी और ने मेरे को बताया, पता है तुम्हारे अंकल की अभी एकदम तबीयत एकदम ठीक हो गई है, उनको अभी सर्जरी जो बोला था डॉक्टर ने नहीं कराना पड़ेगा। सो इस तरह से भी इमेजिन, you could imagine the person calling you or give you the news, or imagine them telling you in person, या आपके पास आके बोला उन्होंने। When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health has been restored. अब ये जब आप विजुलाइज कर रहे हो तो उसके लिए आप इन हार्ट फेल्ट सेलिब्रेशन, आपको इन्होंने बाद में लिखा है कि आपको अंदर से इतनी खुशी होनी चाहिए, इतना ग्रेटिट्यूड निकले, वाह इतनी बड़ी इनकी प्रॉब्लम थी, कितना इनको सफर करना पड़ता, अगर एक बार सर्जरी के लिए जाना पड़ता, बाद में भी लाइफस्टाइल कैसा होता नहीं होता, तो वो खुशी आपको अभी अंदर महसूस हो और उसके लिए डीप ग्रेटिट्यूड अभी आपके अंदर से निकले। व्हेन यू फील दैट, वो बाद में जब वो आपको न्यूज देंगे वो वाली खुशी बाद में होगी, वो खुशी अब अगर आप अभी फील करते हो और उसके लिए थैंक यू बोलते हो तो उसमें मिरेक्युलस पावर आ जाती है और वो चीज वाकई होने लगती है। So when you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. क्योंकि आपके अभी आप उस चीज को इतना फील करके जब ग्रेटफुल फील कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो, तो इसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि ये शक्ति उसको जाके तुरंत उसका हीलिंग कर देगी। And to wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. अब किसी घर में बहुत चैलेंज आ रहा है, वो लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के पैसे नहीं दे पा रहे हैं या बहुत सारी जरूरतें उनकी पूरी नहीं हो पाती हैं, जिस तरह से कैसे कैसे करके उनका घर चल रहा है, या कहीं पे खाना खाने की भी नौबत आ जाती है, इस तरह की भी कंडीशंस हैं, बहुत प्रॉब्लम है, या उनको बहुत ही अपने आप को संभाल के खर्चा करना पड़ता है, बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उनको भी हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि वो भी बोले आपको फोन करके बताया या आपके पास आके बताया कि बाय गॉड्स ग्रेस सडनली क्या हुआ, मेरा तो इतना कुछ ये कहाँ से इतना पैसा आ गया मेरे को, इतना कहीं पे किसी ने अपना कहीं से इनहेरिटेंस आ गया, या मेरे को जॉब में इतनी अभी इंक्रीमेंट मिल गया, सैलरी में इतना इंक्रीमेंट मिल गया कि अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सारे खर्चे बहुत अच्छी तरह से पूरे होते हैं, या मैंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था वहां पे मेरे को इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो जस्ट बाय योर ग्रेटिट्यूड, देखिए कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ऐसा खेल करेगा कि उनकी लाइफ में ये चेंज आ जाएगा। इमेजिन दैट वेल्थ हैज बीन फुल्ली रिस्टोर्ड, और उनको जितना पैसा चाहिए था, जिस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए थी, उस तरह का वो लोग जी रहे हैं। एंड देन यू से
and you are saying the magic words thank you because you have just received the amazing news. अब बार बार ये बोल रही है कि अमेजिंग न्यूज आपको मिली है ना. विजुलाइज करने को यहाँ पे थोड़ा कम एनकरेज करती है, क्योंकि बोलती है कि एनकरेज विजुलाइज करने जाएंगे तो शायद हम उसको उतनी शिद्दत से उतनी क्लैरिटी के साथ क्योंकि राइट ना हम उस पर्सन को ऐसे देख रहे हैं कि वो बहुत हेल्थ में सफर कर रहा है, तो उसको खिलखिलाते हुए देखना, उसको हंसते हुए देखना, बहुत एंजॉय करते हुए देखना और खुश होते हुए देखना कि उसकी हेल्थ एकदम रिस्टोर हो गई है, शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरे माइंड में विजन अभी क्या बना हुआ है कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट हेल्थ, और उसकी वजह से उसके चेहरे पे मेरे को दर्द के भाव दिखते हैं, अशांति के भाव दिखते हैं, परेशानी के भाव दिखते हैं, तो मैं उस पर खुशी के भाव नहीं देख पाती हूँ अभी. लेकिन इसको विजुलाइज करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए बेटर है कि मैं ये विजुलाइज करूं कि मेरे को किसी ने न्यूज दे दी ऐसे, तो दैट इज गोइंग टू बी स्लाइटली इजियर कंपेयर टू व्हेन वी सिट डाउन एंड विजुलाइज कि ऐसे उनका हेल्थ ठीक हो गया, या उनकी वेल्थ की कंडीशन ठीक हो गई, या उनके रिलेशनशिप ठीक हो गए. So if a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need or they help, or if they need any help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth and happiness together. इसी तरह से ऐसा कोई भी इंसान आपकी जान पहचान में हो सकता है जिनको आपको दिख तो रहा है कि बहुत परेशानी है, बट समझ में नहीं आ रहा कि किस बात की परेशानी, वो बहुत दुखी आपको लगते हैं, कुछ तो है उनकी लाइफ में, एंड दे डोंट वांट टू शेयर मे बी या आपको पता नहीं चलता है, या आप जाके खुद पूछना नहीं चाहते हो कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, बट आपको लग रहा है कि फिर भी मैं उसको अगर हेल्प कर पाऊं किसी भी तरह से, विदाउट नोइंग कि उसका एक्चुअली किस स्पेसिफिक एरिया में प्रॉब्लम है. तो यही एरियाज ही होते हैं, या तो हेल्थ होगा, या वेल्थ होगा, रिलेशनशिप होगा, या काम का होगा, पैसों का होगा, या बच्चों का होगा, कुछ तो होगा, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड ही हो सकती है बातें. तो उनके लिए भी हम यही प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम उनके लिए है, या तो उनका उनकी हैप्पीनेस के लिए करें, मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस करें, एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर देयर हैप्पीनेस, या फॉर देयर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस टुगेदर. हैप्पीनेस करेंगे तो उसमें हेल्थ भी आ गई, वेल्थ भी आ गई, और हमारा फाइनेंसेस भी आ गया, हमारे रिश्ते भी आ गए, सब कुछ आ गया. लेकिन अगर वैसे नहीं करना है तो हम तीनों चीजों को एक साथ बोल सकते हैं कि उनकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, तीनों के लिए आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट दिस पर्सन, अभी जैसे ये बताएंगे वो किस फॉर्मेट में हमको लिखना है, उस तरह का बोल के तीनों चीजों के लिए भी हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं और फील कर सकते हैं और ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं. So today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three of these problems. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. तो एक एक करके हमको ऐसे 3 लोगों की आज हमको लेना है. 3 जब बोलती है तो 3 ही लेंगे, हमारे पास ज्यादा होंगे लोग तो उन बाकी के लोगों के लिए हम नेक्स्ट डे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आज के लिए हमें 3 लोगों का करना है ये, है ना. तो 3 लोगों की हमको पिक्चर्स होना इज अ गुड थिंग, बिकॉज जब हम इसके लिए सोच रहे हैं तो उनका चेहरा हमारे माइंड में, उनका ध्यान हमारे माइंड में होना बहुत जरूरी है. तो वो माइंड में कभी होता है, कभी इधर उधर खिसक जाता है जब हम विजुलाइज करने लगते हैं, तो इट्स बेटर टू हैव द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ अस. तो उस पर हम पूरा ध्यान लगा के फोकस करके जब उनसे बात करेंगे, इस तरह से उनको वाइब्रेशंस भेजेंगे और उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे, ब्लेसिंग्स भेजेंगे, तो वो उसके लिए काम करती है. जैसे हम लोग प्राणिक हीलिंग में भी करते हैं ना, तो वी कीप द पिक्चर ऑफ द पर्सन्स जो भी उनका ये है पर्सन का फेस है, या उनकी पूरा बॉडी को, या पूरे उनको सामने रख के तब हम लोग प्राणिक हीलिंग करते हैं. या नहीं तो एक बार किसी को हम नहीं भी जानते होंगे तो एटलीस्ट हम लोग उनको बोल देते हैं कि आप उनका एटलीस्ट अपना पिक्चर भेजो. जैसे मेरी फ्रेंड ने अपने बेटे के लिए बोला, तो व्हेन आई हैड सीन हिम वाज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, तो मैंने कहा उसको आपका फ्रेश पिक्चर भेजो. सो व्हेन आई हैव दैट पिक्चर इन माय माइंड, तो मैं पिक्चर देख लिया, उसके बाद अब उसका चेहरा मेरे सामने, तब मैं उसके बाद वो हीलिंग करना शुरू करती हूँ. तो इसी तरह से हमको आज जैसे पिक्चर्स लेना पड़ेगा 3 लोगों का, जो उनके लिए हमको चाहिए कि हम उनकी लाइफ में कुछ चेंज ला पाए, चाहे उनकी हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, या किसी भी तरह की हैप्पीनेस या डिप्रेशन उनकी लाइफ में लैकिंग है, डिप्रेशन है या हैप्पीनेस इज लैकिंग, तो हम उनके लिए कर सकते हैं. टेक द फर्स्ट पर्सन, होल्ड देयर फोटोग्राफ इन योर हैंड, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again or a depressed person happy again,
और अ फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड पर्सन अबंडेंट अगेन, है ना। एक अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ देख पाना या एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को खुश देख पाना, हमारे लिए उस विजुअलाइजेशन को करना मुश्किल हो सकता है। बट यही अगर हम इस तरह से इमेजिन करें कि हमको न्यूज मिल रही है कि अरे यार आजकल वो एकदम डिप्रेस नहीं है, बहुत अच्छी तरह से बात करता है, इतना प्यार से बात करता है, इतना खुश रहता है। अर्लियर दैट पर्सन चाहे किसी फ्रेंड की न्यूज आ रही है, कितना वो खोई रहती थी अपने ख्यालों में, अपने आप में ही खोई रहती थी, किसी से बात नहीं करना, हमेशा परेशान परेशान दिखना। बट आजकल इतने अच्छे से बात करती है, अपना घर भी पूरा संभालती है, हर तरह का काम भी अच्छी तरह से करती है, एंड शी लुक्स सो जॉयफुल, सो चीयरफुल, एंड इतनी चीयरफुल हो गई, इतनी चर्पी लगती है, इतना अच्छा खुश लगती है। सो व्हेन यू हियर दैट न्यूज, तो आपके अंदर में खुशी आती कि वाओ, उसको लेके मेरे को कितनी परेशानी होती थी, कितना हमको दुख होता था, बट नाउ आई एम सीइंग दिस, विजुलाइज कर रही हूँ कि मुझे ये न्यूज मिल रहा है। तो इस तरह का न्यूज मिलना मेरे लिए ईजी होता है। या किसी और का पता चल गया, किसी और के लिए आप विजुलाइज कर रहे हो कि फलाने फलाने को जैसे कैंसर हो गया था, तो उनके लिए अब मेरे को न्यूज मिल रहा है कि सपोजिंग किसी अंकल का या उसकी वाइफ ही फोन करके बोल रही है कि देखो अभी उनका इतना अच्छा हो गया है कि अब उनको आगे कीमो कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको ब्रेथ वर्क करके ये इतना इंप्रूवमेंट आ गया, उनको मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क करके, और जो थोड़ी बहुत दवाइयां लेनी पड़ती हैं, आयुर्वेदिक चला रहे हैं हम लोग, होम्योपैथिक चला रहे हैं, उससे उनको इतना इंप्रूवमेंट आ गया, एंड डॉक्टर हिमसेल्फ इज सेइंग कि नाउ यू डोंट नीड टू गो फॉर दिस ट्रीटमेंट। इस तरह की हम न्यूज सुन रहे हैं और हमारे अंदर में खुशी आ रही है, और ये हम विजुअलाइज करके उनके लिए थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे। सो एंड वो क्या करेंगे, एक एक पर्सन का पिक्चर लेके हमको इस तरह से विजुअलाइज करना है, एंड देन यू विल फील मोर एक्साइटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड इफ यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन योर विजुअलाइजेशन। अब मेरे को इस विजुअलाइजेशन में क्या करना है कि मैं खड़ी हूँ एंड सपोजिंग द अदर पर्सन, वो आंटी आके मेरे को अपने हस्बैंड के लिए बता रही है, अंकल के लिए बता रही है कि और मैं, हम लोग दोनों ऐसे, अब हम लोगों के माइंड में हम इस तरह के कन्वर्सेशन जनरली हमारे पास चलते रहते हैं ना इमेजिनेशन में, कि मैं खड़ी हूँ और वो भी खड़ी हुई है और हम लोग दोनों की बातें हो रही है और वो मुझे बता रही है और मुझे कितना एक्साइटमेंट फील हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है, एंड आई कैन सी द एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑन हर फेस. Seeing excitement and happiness on an ill person's face is difficult for me because he is still going through that illness. But मैं जब विजुलाइज करती हूँ कि उसकी इलनेस ठीक हो गई और उसकी न्यूज मुझे मिल रही है, तो उसके एक्सप्रेशंस को उसकी वाइफ के चेहरे पे देख पाना मेरे लिए कंपैरेटिवली इजी है. तो सी योरसेल्फ इन दैट पिक्चर, in that conversation. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth or happiness or whichever combination that they need it, So कैसे बोलना है हमको? पिक्चर हाथ में लेनी है और हमको ये विजुलाइज करना है कि वो मुझे न्यूज मिल गई है और न्यूज सुन के मैं कितनी खुश हूं, एंड हार्ट फेल्ट सेलिब्रेशन वो बोल रही है कि आपको अंदर से दिली खुशी होनी चाहिए, इतनी गहरी खुशी हो कि उस ग्रेटिट्यूड, उस खुशी की वजह से आपके अंदर से खुशी निकल रही है, ग्रेटिट्यूड निकल रहा है और आप बोल रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्लोली 3 टाइम्स अपने दिल से गहराई से फील करते हुए. फॉर इसका अंकल का नाम ले लिया, फॉर हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस जो भी है उस नाम का नाम लेके थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय अंकल्स हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर नीना's finances improving, for her health improving, yeah, health has been restored, like that. अपने अंदर में माइंड में उस टाइम पे डिटेल में पूरा सोचना है कि आपको वो किस तरह से न्यूज मिली है ना, और आप सुन रहे हो कि अभी उनका पहले हेल्थ का इतना चैलेंज था, अभी उनके सारे खर्चे बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं, इतनी बढ़िया, इतना डिटेल में कन्वर्सेशन सोचिए कि अंदर से आपको वो खुशी फील होनी चाहिए, तब जाके वो डीपली ग्रेटिट्यूड निकलेगा. जब उतनी डेप्थ से, उतनी रियलिटी से, उतनी जेन्युइनली ग्रेटिट्यूड निकलेगा, ओनली देन इट इज गोइंग टू वर्क, राइट? So as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth और happiness to all 3 people. एक का कर लेंगे तब हम दूसरे पे चले जाएंगे. सपोजिंग एक का हेल्थ का इशू था तो दूसरे का मैंने वेल्थ का सोच लिया, वेल्थ का जिसका इशू था तो मैंने उसके पास वो कर दिया कि अब वो लोग भी बहुत खुश हैं, उनके सारे खर्चे बहुत अच्छी तरह से पूरे हो जाते हैं, हर तरह की जरूरतें पूरी हो जाती, बल्कि इतना कि अभी तो वो लोग यूरोप गए थे अपना ट्रिप करने के लिए, इतनी उनके वेल्थ की अबंडेंस आ गई कि इतने खुश हो गए अभी वो लोग. तो यू बिकम सो हैप्पी कि वाओ, अब उनकी लाइफ में इतनी अबंडेंस आ गई तो मेरे अंदर मेरे को खुशी हो रही कि मैं उनकी लाइफ में ये अबंडेंस को सेलिब्रेट करूं. तो वो हार्ट में फेल्ट सेलिब्रेशन की फीलिंग अंदर लाना बहुत जरूरी है.
And then she says, now you can also, now ये 3 लोगों के लिए हम लोगों ने आज कर ली, you can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day. आप कहीं भी आते जाते हो या रास्ते में अगर आप गाड़ी से जा रहे हो या वॉक कर रहे हो या कहीं ऑफिस में अभी आपको ऐसे कहीं कुछ लोग दिख जाएं, कोई जिनसे आपका कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, सपोजिंग आपके ऑफिस में कोई ऐसा क्लाइंट आया था या कोई ऐसा कस्टमर आया था, आपकी शॉप में कोई कस्टमर आया, आप स्टोर में काम करते हो, आपको दिख रहा है वो कोई डिस्ट्रेस लग रहा है, परेशान दिख रहा है, तो आपने उसके लिए भी ये वाली अंदर से अपने कर दिया, क्योंकि वो पर्सन आया या आपको रास्ते में चलते फिरते किसी का ऐसे दिख गया तो उसके लिए आपने ये वाली gratitude and blessings भेजे उनके लिए. So, and you can come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness. Again, see the word she's using. पहले बोला heartfelt celebration, now she's saying heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness. And know that you have set a real force of energy into motion. जैसे ही आपने ये इंटेंशन क्रिएट किया है, आपकी एनर्जी ने उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया है, एंड दैट एनर्जी इज गोइंग टू वर्क. तो आप खाली बस उसके साथ अपनी ग्रेटिट्यूड की शिद्दत को जोड़ देते हैं और इंटेंशन क्रिएट कर देते हैं और उसकी तरफ डायरेक्ट कर देते हैं. नाउ इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब होके आएगा, पर होगा जरूर, है ना. सो यूजिंग ग्रेटिट्यूड टू हेल्प समवन एल्स विथ हिज और हर health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. सबसे बड़ी सेवा ये हमारी ये है कि दूसरों की हेल्थ वेल्थ के लिए या हैप्पीनेस के लिए अगर हम दूसरे को दे पाए, हम अपने ग्रेटिट्यूड की पावर, अपनी ब्लेसिंग्स की पावर अगर दूसरों को देते हैं कि उनकी लाइफ में खुशियां आ जाएं, उनकी हेल्थ ठीक हो जाए, हर तरह की अबंडेंस उनको मिल जाए, तो सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड का वे एक्ट है ये परफॉर्म करने के लिए. अपने लिए तो हम करेंगे ही करेंगे, कर ही रहे हैं और सीख ही रहे हैं, और अपने लिए से स्टार्ट पहले इसीलिए किया था क्योंकि हमको अपने लिए रिजल्ट्स दिखने लगे अभी हमारे अंदर में, हमारे मेंटल स्टेट में, हमारे बीइंग लेवल पे, हमारी सर्कमस्टेंसेस में, हमारे फाइनेंसेस में चेंज आने शुरू हो गए. तो हमको विश्वास हो गया कि अब हमारे अंदर इतनी पावर है कि इस थॉट की पावर से, इस ग्रेटिट्यूड की पावर से, इस इंटेंशन की पावर से, इस ब्लेसिंग्स की पावर से हम दूसरों की लाइफ में भी चेंजेस ला सकते हैं. इसीलिए हमको ये प्रैक्टिस इतनी देर से 24th पे लाके इसीलिए दी गई कि बिगिनिंग में अपना कर करके इतने पक्के हो जाओ, इतने मजबूत हो जाओ, इतना फेथ एंड बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप उसको दूसरों के लिए भी यूज कर पाओ. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. अब ये लास्ट में एक बात और बोलती है कि जैसे अगर आप दूसरों के लिए जितनी दुआएं देते हो वो दुआएं आपकी लाइफ में वापस लौटती हैं. दूसरों को आप जितनी खुशियां दोगे, उनकी लाइफ में जैसे ही चेंजेस आएंगे, वो आपने उनको वो दुआएं भेजी, वो ग्रेटिट्यूड की ब्लेसिंग्स भेजी, वो आपकी लाइफ में लेके आएंगे, आपकी लाइफ में, क्योंकि लाइफ इज अ बूमरैंग. आप जो डाल रहे हो वही वापस आपके पास आ रहा है. जो भी आप बूमरैंग की तरह, बूमरैंग को आप फेंको तो उसी स्पीड से वापस आता है ना. जैसे न्यूटन का भी कोट था ना कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट, क्या है, ऑपोजिट रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोच के ये वाली प्रैक्टिस करें, ये वाला हम ये वाली ग्रेटिट्यूड दूसरों के लिए करें और दूसरों को ब्लेसिंग इसलिए भेजे कि हाँ मेरी लाइफ में मेरे को चेंजेस लाने हैं, मेरी लाइफ में मेरे को ग्रोथ लानी है, प्रॉस्पेरिटी लानी है, अबंडेंस लानी है, इसलिए मैं दूसरों को ये भेजूं. तो वो वाली फीलिंग जब हम उसके साथ में करेंगे तो उसके साथ में हमारा सेल्फिशनेस जुड़ा हुआ है. तो हम क्या दे रहे हैं फिर, हम किस तरह की एनर्जी हम बाहर भेज रहे हैं, सेल्फिशनेस की एनर्जी जा रही है ना. ब्लेसिंग्स के साथ सेल्फिशनेस की एनर्जी ऑल्सो गेट्स कनेक्टेड. तो हमको वो नहीं करना, हमको प्योरली इस इंटेंशन के साथ करना है कि अगले की लाइफ में उतनी खुशियां आ जाएं, उसकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो जाए. वो प्योरिटी तब तक नहीं आएगी जब तक हम उतनी वो जेन्युइननेस से नहीं फील करेंगे अंदर. वो जब बोल रही ना हार्टफेल्ट सेलिब्रेशन करो एंड हार्टफेल्ट वे में ग्रेटिट्यूड करो, वो हार्टफेल्ट सेलिब्रेशन एंड फीलिंग तब तक नहीं आएगी जब तक हम उसको इतना प्योरली करेंगे नहीं. अगर इंटेंशन ये रहा कि मेरा मैं अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाह रही हूँ इसलिए मैं ये कर रही हूँ, तो वो नहीं होगा. लेकिन वो हम दूसरे को खुश करना चाह रहे हैं, दूसरों की लाइफ में चेंजेस लाना चाह रहे हैं, वो तो ये वाला बाई प्रोडक्ट अपने आप ही हो जाएगा, एज अ बोनस हमारी लाइफ में आ जाएगा. सो जस्ट नीड टू चेंज आवर माइंडसेट एंड डू इट फर्मेंटली फॉर अदर्स, सो दैट कि हम सबकी लाइफ में वो खुशियां ला पाए. शीला मैम, प्लीज रीड द मैजिक प्रैक्टिस नंबर 24. Magic practice number 24. The magic wand. 1.
count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. 2. Choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, and happiness, or all 3. 3. If you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep in front of you while doing the magic wand practice. 4. Take one person at a time and hold your photograph in your hand. Close your eyes for a minute and visualize the person's health, wealth, and happiness has been fully restored and you are receiving the news. 5. Open your eyes with the photograph still in your hand and say the magic word slowly, thank you, thank you, thank you for the person's health, wealth, and happiness. 6. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all the 3 people. 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah. Thank you so much, Sheila ma'am. Thank you for reading so beautifully. Thank you, Chaitanya, for giving me the chance. Thank you. Thank you. So now again, just as usual, we have 2 regular practices. Count your blessings that we write early in the morning. We will write 10 blessings, and every day it has to be different, different, different. So, for every little small things, you can think of being grateful to your laptop, and along with the laptop, the charger's wire, the socket, every little thing is important. Any one of them, if is not working perfectly, we feel so, not, it feels so incomplete. And if we look for the, solutions immediately, for as long as they are working fine for us, we don't realize their worth, for find every little thing in the home, in your home, and just see as many things as you can find, and at least write 10 gratitudes. And for each thing, again, read one by one and say thank you, thank you, thank you. So like just before sleeping at night, we do magic rock. Similar, how your morning started, how there was beautiful sunlight, how's the beautiful weather there, or maybe it is raining, then be feeling blissful about the rain. Or if you have gone somewhere for a holiday, then how you're enjoying the weather there, how are the surroundings there, what are you enjoying about whatever you are eating, enjoy your food, how you talk, whatever drink you take in the morning, be it coconut water or a juice or your tea or coffee, how nice it was to have that, how nice it was to be served for yourself, or how nice it was for yourself to be making it yourself and to be able to go and do it yourself also. So whichever way you did it, so be grateful about that. And then whatever, everything is available at home, and how the cooking was done by the maid or you did it yourself, how's the food turn out, we feel blissful about every little thing, how nicely you had a bath and the water was so nice, and the temperature was just the perfect, the way you wanted it, because cold and hot, both kinds of water is available all the time, the geyser is running, plumbing system is so good. Find as many things in the entire day, so the more we think about these things, the more our subconscious mind becomes saturated with these thoughts of happiness and gratitude, because that is what we want our mind to be saturated now at the time of sleeping. So with that kind of feeling, in that happy zone, if we are sleeping with and saturating with these thoughts, our subconscious mind, only then it is going to, create those situations in our life. So apart from these 2, choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, or happiness, all 3 people, or all 3 things. And कोई भी 3 लोगों को हमको आज चूज करना है, जिनके लिए हमको वन बाय वन, हमको जिनकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए हमको ब्लेसिंग्स करनी है. सो इफ यू हैव देम, एक का पिक्चर लेंगे हम उनका, और एक का पहले एक बार एक हाथ में लेके, फिर and hold their photograph in their hand, close your eyes, and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news.
किसी के घर में किसी का सास के साथ रिश्ता नहीं बन रहा है अच्छा, तो वो आपको फ्रेंड फोन करके बोल रहे हैं या आपकी कजिन फोन करके बोल रही है कि नाउ दीदी सी सो ब्यूटीफुली आवर रिलेशनशिप हैज बिकम सो ब्यूटीफुल, है ना। एंड अभी हम लोगों का पहले हम लोग बात भी नहीं करते थे, नाउ वी आर गोइंग आउट फॉर लंचेस टुगेदर, मेरी सास के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है, या मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग फॉर अ हॉलीडे, है ना। या समबडी इज कॉलिंग यू अप एंड टेलिंग यू कि दूसरे के पास आप जाते हो, एक बार एक का कर लिया, दूसरे का कर लिया, दूसरे ने आपको अपनी हेल्थ का बता दिया, तीसरे ने आपको अपना वेल्थ का बता दिया कि कितने अच्छे अब हम लोगों के हो गया कि मेरे को पहले बच्चों के लिए एक एक चीज के लिए सोचना पड़ता था, अभी मेरे को लगता है कि मैं उनकी हर इच्छा पूरी करूं और हर इच्छा मैं पूरी कर भी पाती हूँ। तो हम लोग आजकल इतने खुश हैं सारे, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। अभी मेरा बड़ा बेटा के लिए मैं सोच रही थी कि उसको एजुकेशन के लिए मैं बाहर नहीं भेज पाऊंगी, अभी नाउ वी आर प्लानिंग कि वो यूएस जाके पढ़ाई करेगा। बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव गॉट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, यू नो। तो ये सब हम लोग इमेजिन करके विजुलाइज करके सुन सकते हैं कि किसी ने हमको ऐसे न्यूज दिया। एक एक करके तीनों का हम पिक्चर्स लेंगे, फिर उनके बारे में ऐसे विजुलाइज करेंगे। एक का कर लिया, फिर उसके बाद ओपन योर आईज विद द फोटोग्राफ स्टिल इन योर हैंड एंड यू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, स्लोली बहुत डीपली फील कर करके फॉर हिज हेल्थ, दूसरे के लिए फिर बोलेंगे वेल्थ, एंड थर्ड के लिए हैप्पीनेस, या तीनों का एक साथ जो भी कॉम्बिनेशन हमको चाहिए। सो एक एक करके हम लोग ये तीनों लोगों के साथ कर लेंगे। दिस इज हाउ दिस प्रैक्टिस विल एंड सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। आज 3 लोगों के लिए हमको ऐसे करना है, ठीक है। सो नाउ इफ एनीबडी हैज, बहुत क्वेश्चंस होते हैं ना हम लोगों के इस तरह के कि मेरा बेटा का ऐसे इशू चल रहा है, मेरा भाई का ऐसे इशू चल रहा है ना। तो वी हैव आंसर फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स टुडे, राइट। किसी का अंकल का आंटी का कैसे भी चल रहा हो, सो वी हैव आंसर्स फॉर ऑल दैट टुडे, okay. Now anybody has any questions or anything, whatever? No, nothing. Everybody is so silent and quiet. And please turn on your videos, some of you. It would be so nice to see you all. The Great. chapter is so intense, so it is still going slowly into our brain. Yeah, Aarti, you have an answer for your. Thank you, Rani ji. Rani ma'am. Aarti, you have an answer, not today, for your query the other day. Yes, I got Right? the answer today. Yeah, so it is that But great. earlier you told me not to do for others that because this was because We we need were to not in the practice of gratitude. Yeah, exactly. That's why you said. Now you have to reach, certain everything is coming. Why this practice has come at number 24? It could have easily come anytime before also, ना? Initial few days भी आ जाती. But अब कर करके हमारा level इतना strong हो गया है. Now we have that faith and belief. Yes, gratitude की power work करती है. और जो हमको रोंडा बोलती जा रही है, हमको दिख रहा है कि यार, it is unfolding in front of us. हमने जो उसने Right. हमको बताया हमारे सामने हो रहा है. तो अब तक हमको नहीं पता था, या कई बार हमको ऐसे बोल भी देते हैं लोग ना कि जो काम आप अपने लिए करोगे वो शिद्दत से आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, वो दूसरों के लिए नहीं कर सकते हो। तो दैट बिलीफ इज ऑल्सो देयर इन योर माइंड। बट नाउ जब हम देख रहे हैं कि रोंडा ने जो बात बोली है सब बात सच हो रही है, तो अब ये बात बोल रही है कि हम दूसरे के लिए भी यूज कर सकते हैं। वाई? बिकॉज कल तक का प्रैक्टिस करके हम एल्केमिस्ट बन गए, हम उस लेवल पे आ गए कि हमने 5 एलिमेंट्स तक को भी थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, हमको उसका फील होना शुरू हुआ। जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, है ना। Correct. Yeah, I got it. ऑल दीज डेज की प्रैक्टिस जिसने रेगुलरली की है वही कर पाएगा। और आज अगर सडनली ऐसे जो बीच बीच में कभी कभी ज्वाइन करते हैं ना, तो वो लोग अगर करेंगे तो नहीं आएगी वो इंटेंसिटी, नहीं आ पाएगी, बिकॉज दैट इंटेंसिटी पहुंचना भी बहुत जरूरी होता है। और ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि वो पर्टिकुलर चीज के लिए वो पर्टिकुलर एक लेसन जो हमने पढ़ा था वो उनको दूसरे को बताना भी ठीक नहीं है। सो दे आल्सो हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस। या एग्जैक्टली। करके पॉइंट नहीं है ना, वर्क ही नहीं करेगा, आपको फेथ ही नहीं आएगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि फेथ नहीं है आपके अंदर में, वो बिलीफ नहीं है। और वो फेथ आया कितने दिनों की जर्नी के बाद, एक एक दिन करके हमारा फेथ बढ़ा है। पहले दिन नहीं था किसी में, आप में कितने सारे लोग नए हो, किसी को भी नहीं था कि ऐसा कैसे। दैट इज वाई यू सी ना कितने हैंडफुल पीपल आर सिटिंग हियर। लोग मैजिक का जो लोग नए हैं उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि वाकई ऐसे कैसे हो सकता है। बट धीरे धीरे करके व्हेन you start creating those magics and these results in your life, and then you pass on these sharings with your friends and family, जिनको सबको आप बताना शुरू करते हो,
तब उनको भी लगता है कि हाँ इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। एंड विथ रेगुलर प्रैक्टिस, अभी तो हम लोग फर्स्ट मंथ में, जैसे काफी आप लोग जितने भी नए हो, पहले मंथ में इट कंटिन्यूज, गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इट हैज टू कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एवरी मंथ, तब जाके हमारा लाइफस्टाइल बनेगा, तब हमारी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे जो हम चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज हमने किया, हमको अभी मिल गया चेंजेस, हमने एक मंथ बंद कर दिया तो अगेन वी विल गो बैक टू जीरो। सो दैट इज व्हाई इट हैज Yeah. टू कंटिन्यू। ये चीज को बार बार करते रहना, और बहुत ही इजी है, जैसे जैसे हम लोग करते जा रहे हैं, कितने अच्छे रिजल्ट्स हम लोग की सबकी लाइफ में आ गए, है ना। पीपल अभी जैसे कविता वाज सेइंग द अदर, लोग वाकई अभी कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि वाकई ये चीज हो रही है, कर रहे हैं और हो रही है, तो ऐसे लग रहा है कि जादू हो रहा है। मैंने कहा इसीलिए तो जादू का नाम ही रखा उसका, बुक का, मैजिक एंड जादू, कि होगा, ये होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट यू हैव टू डू इट एंड हैव टू हैव दैट फेथ आल्सो अबाउट इट, और वो फेथ कर करके ही आएगा, है ना। Absolutely. ठीक, thank you, Chetna. थैंक यू, थैंक यू। सो नाउ यू विल बी हैप्पी एंड रिलैक्स एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। Yes, yes, I can do it now. Yeah. Yeah, great. हाँ जी, Chaitali, you had messaged me, na? I forgot to answer you yesterday because there were meetings after meetings yesterday lined up, ना, तो मैंने कहा कि बाद में करती हूँ, फिर मैं भूल ही गई। आज आपको देखा तो मुझे ध्यान आया कि चलो मैं मैसेज, you can call me in the evenings sometime today after 6. ओके, कल मैं करूं? आज एक्चुअली गेस्ट आएंगे तो ठीक है, कल मैं आपको कॉल। yeah. कल also between 6 and 7, yeah, the whole day. 6 to 7. Yeah, 6 to ओके, great, थैंक यू। great. Yeah, शीला मैम, आपका हाथ अभी भी रेज्ड है, it is नहीं नहीं okay, चलिए, okay, great. So all set for the upcoming this thing. Sorry, you got muted, sorry. हाँ, No, I said all set for the coming forth this thing sessions. yeah. So you'll go to Bangalore on the 23rd for the full moon meditation, Yes. and you'll be there till the 2nd, right? Sorry, You'll be there till the 2nd. that I have not So- decided. I will see. Why you are not the MC? Hopefully, I'll see how it goes. Yeah, you can't leave and come. What hopefully? Nobody will let you come. Don't have hopes. Let's मैम आप 23rd को जा रहे हैं? yes, special permission. Full moon. वाओ Special मैम permission. कितने हाँ। बजे वाली फ्लाइट है आपकी? मेरी मॉर्निंग फ्लाइट है, मॉर्निंग फ्लाइट। मैम मैं आई एम आल्सो कमिंग ऑन 23rd, क्योंकि मैंने तो शुरू में ही ले ली थी, जब मैंने बुकिंग करवाई थी उसी टाइम ही मैंने परमिशन ले ली थी ओके, बाय मैसेजिंग 23rd को बहुत भीड़ होने वाली है ना, तो इसीलिए हाँ, and then बट लेकिन मैंने तो उसी टाइम ले ली थी जिस टाइम मैंने अपना बुकिंग करा था। तो okay, मैंने पूछा था कैन आई कम ऑन 23rd, तो मिलिंद जी ने बोला था यस यू कैन। तो आई हैव आल्सो बुक्ड ऑन 23rd, तो मेरा भी मॉर्निंग का Very ही lucky. है, इसलिए मैं पूछ रही थी मैम आप कितने बजे पहुंचोगे वहाँ? मेरा अभी मेरे को देखना होगा कितने बजे लैंडिंग है। ऐसे आप कितने बजे, आपकी कितने बजे की है मेरा है 10:30 बजे का यहाँ से फ्लाइट है, तो अराउंड 1 o'clock मैं आई विल फ्लाइट? रीचिंग देयर। विल टॉक, बाद में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। हाँ फिर Yeah. क्योंकि ना वहां से पिरामिड जाने तक के Yeah. लिए मैं आई वाज सर्चिंग आउट द कंपनी एक्चुअली। Yeah, exactly. That is the main problem. From airport, 40 kilometers away from Bangalore. You Yeah. really wish you can go as a group rather than Yeah, go no, alone. there will be with many people. You let them know, no? They only arrange for them. There is never a problem. I've been going for so many times. Never a problem. Never. I was dropped, so I didn't have the problem. Yeah. Chal. I feel so jealous that I wish I could have come. Chetna ji, you are putting that spark, but I can't because my grandchildren are coming from states to spend with us. Okay. So- Well, there will be more opportunities in future. I Right. know, but each opportunity is something great you're missing as it passes by. Hmm. So anyway, glad you give us back all the feedback and pump us up again. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. So I'm going to be anchoring once again, this time also. वाओ वेरी गुड, मजा आने वाला है मैम, बहुत मजा आएगा। ठीक। चेतना, ये ऑनलाइन होगा क्या? हम सुन सकते हैं घर पे? अभी तक तो होता ही है, आई थिंक होगा इस बार भी, या अब तो उन्होंने शुरू कर ही दिया ना ऑनलाइन करने का, हाँ, 2 बार से हो ही हाँ। रहा है।
वो can But make nothing information like being in person there, I swear. आने पर at least we can listen. yeah, at least. Imagine तो कर ही सकते हैं, visualize तो कर ही हम्म। सकते हैं कि हम भी वही हैं. Yeah. Yeah, at least ये चलो. तो हो गया ना, जो लोग नहीं जा पाते उनको भी लाइव ऐसे तो मिल ही जाता है. हाँ. चलो, God bless you. God bless. Happy Yeah. journey. And Enjoy your trip. on our behalf also. And remember, we are with you in spirits. Yes. I will always be connected with you all. Thank you so much. चलें फिर. Anybody else? No, any questions? अब we can move हमने on. को एक क्वेश्चन पूछना था हाँ, बोलिए कि सर. हमने जैसे डे 15 को हम लोग ने जो किया था उसमें था कि हम जो भी करना चाहते हैं या आज के दिन में जो अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए हम पहले से थैंक्स बोलेंगे कि थैंक यू, ये चीज आज मैंने बहुत अच्छे से की, या तो मैं यहाँ गई थी और बहुत अच्छा कुछ हुआ. और जो हमने 15 में तो नहीं था, डे 15 था ये. डे 15 डेट शायद 15 था. डेट मैम मैजिकल डे के बारे में मैजिकल डे ना, डेट आप डेट बोल रहे हो. बोल रही हूँ मैं. हाँ. Okay. और हमने जो परसों किया कि हम पहले से ही बोल देंगे कि जो मैग्निफिसेंट आउटकम है उसके लिए थैंक्स. तो ये दोनों में मैं क्या डिफरेंस क्या करूं, मतलब मैग्निफिसेंट आउटकम ना, जैसे अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, मैजिकल डे में आपने मॉर्निंग से रात तक आपका रेगुलर में जो आपका फिक्स रहता है ना रूटीन, ये भी करना है, आज खाना भी बनाना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फिर व्हाटएवर, या मेरे को जैसे म्यूजिक क्लास जाने लगता है, ये होता है वो होता है, तो ये सबका रेगुलर रूटीन में जो आता है उसके लिए हम पहले से विजुलाइज करते हैं कि हर काम मेरा पूरे दिन का बहुत अच्छा हो गया. और मैग्निफिसेंट आउटकम आप एक एक काम के पहले भी कर सकते हो. इमीडिएटली कोई सडनली कोई चीज आती है ना, आपको पता नहीं है पहले से ना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सडनली कोई आ गया, या ऐसा कुछ प्लान करके भी रखा हो, कोई बड़ा सा कुछ ऐसा काम है, उसके लिए जस्ट बिफोर गोइंग या जस्ट बिफोर स्टार्टिंग या पहले से ही, थोड़ी देर पहले से उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देते हैं. तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं, बट फिर भी थोड़ा फर्क है. सो अब जैसे ये वाला आज वाला किया, मैजिक डस्ट था, एंड देन आज मैजिक वॉन्ड है. मैजिक डस्ट फर्स्ट की पीपल हुआ वर्किंग फॉर अस, एंड देन वो वर्किंग फॉर अस जिनकी वजह से हमारे लिए लाइफ चलती है. डिफरेंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे, हजारों तरह के लोग हैं जिनकी जिनका कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ में. बट देन फिर उसके बाद शी मूव्स ऑन एंड से कि जिसको भी आप देखो, उसका चैप्टर का नाम ही है फिर मैजिक डस्ट एवरीवन. जो भी आपको कभी डिस्ट्रेस में दिखे या क्या दिखे, फिर देन उसको ऐसे करके स्टार्ट हुआ इस तरह से, फिर देन इट गोज ऑन टू एवरीथिंग. राइट, वैसे ही आज का भी है मैजिक वॉन्ड. ये हम लोगों का उनके लिए है कि जिनको हम जानते हैं, जो हमारे करीब के हो सकते हैं, जिनकी लाइफ, जिनका इतनी तकलीफ देख के हमको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनको डे टू डे देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, देखते हैं. मैजिक वॉन्ड हमारा, ये मैजिक डस्ट हमारा किसी के लिए भी हो सकता है, जिनको हम नहीं भी जानते हैं, बट उनका लाइफ में एक कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा, है ना. तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क करके हर एंगल पे वो हमारा ध्यान लेके जा रही है कि हमको कहाँ कहाँ पे ग्रेटिट्यूड होने की जरूरत है, ग्रेटफुल होने की जरूरत है. क्योंकि मेरे को लगा कि मैग्निफिसेंट में मैं क्या वैसा लिख सकती हूँ जिसमें मेरे को डर है कि ये काम करना है, बट मेरे को इसमें डर है कि उसका आउटकम अच्छा होगा या नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं उसमें करूँ. ऐसा एक ब्लड टेस्ट भी कराने जा रहे हो ना, तो बोलो उसमें भी मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो, है ना. ब्लड टेस्ट तो मेरा डेली रूटीन में नहीं आता है ना, कभी कभी आता है, सडनली डॉक्टर ने बोल दिया मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया उसमें, या कोई भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करानी है या क्या, वैसे कर दिया. ठीक है. या अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसका मैग्निफिसेंट आउटकम में जा रहे हैं हम लोग, बाहर घूमने जा रहे हैं तो उसमें मैग्निफिसेंट, किसी के साथ पार्टी करने जा रहे हैं उसका मैग्निफिसेंट आउटकम. ठीक है. ठीक है. थैंक यू. Thank you. Okay, friends. See you all again tomorrow then. And today is Monday. So tonight also for meditation, and tomorrow for this session in the afternoon. Today is Sunday, ma'am. Oh, today is Sunday. Thank you. I was wondering. आज तो आपका मेडिटेशन है. आज Sunday है. छुट्टी. Thank God. And I will share you all with her. मैंने बताया ना, मेरे को रोटी के प्रोजेक्ट से बड़ा डर लगता है. So yesterday, now this is the last month actually, and I should have finished some work. वो जो उनका अपलोडिंग रहता है मिनट्स का एंड एजेंडाज का एंड उसके पिक्चर्स एंड उनकी मीटिंग्स का अपलोड करना होता है. तो सर्टेन पार्ट वाज डन, एज आई सेड ना, टिल अ टाइम दिसंबर तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक हो गया था. उसके बाद का मैंने नहीं किया था, और मैंने देखा भी नहीं, वो मैं साइट भी खोल के नहीं देखा, बिकॉज थिंग्स हैव बीन क्वाइट
हेक्टिक, तब से मेरी बहुत ट्रैवलिंग, 3-4 बार तो ट्रैवलिंग हो गई है, तो होती ही नहीं हो यहाँ पे, तो मेरे से नहीं होता। तो यस्टरडे फाइनली आई सेड कि अब तो थोड़ा सा ही टाइम बच गया, आई हैव टू सी कि अब उसके बाद भी कभी उन्होंने शायद कर दिया होगा, तो थैंकफुली इट इज डन, देन आई विल बी रिलीव्ड कि चलो हो गया काम। बट देन व्हेन आई ओपनड आई सेड नो, इसके बाद वो मूवी नहीं, वो वहीं पे खड़ा हुआ है, तो नाउ आई हैड टू अगेन गो जनवरी टू मेक, यू कैन इमेजिन कितने मीटिंग्स, कितने प्रोजेक्ट्स, कितना क्या अगेन, मतलब आई वाज सो फियरफुल गेटिंग इनटू दैट ग्रुप। फिर सबके ढूंढ ढूंढ के मैंने वो निकाले कि किसको किसको अपलोड करना है, तो सम ऑफ देम वर मिसिंग, देन आई मैसेज्ड हिम कि ये सब मिसिंग है, आप प्लीज उनको भेज दो ना, तो मैं कर देती हूँ, उसको अपलोड कर देती हूँ। बट आई वाज सो फियरफुल कि इसमें मेरा कितना टाइम जाने वाला है। तो ठीक है, उनको मैंने जब मैसेज किया तो ही सेड कि ओके लेट मी चेक इफ इट इज विद मी। आई सेड बट आई एम ट्रैवलिंग कपल ऑफ डेज लेटर, 2-3 दिन के बाद, तो उससे पहले मुझे मिल जाएगा। देन ही सेड कि डोंट वरी, वील गेट इट डन देन। आई सेड ओके, आई एम सो So sweet. हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, मेरे सिर से बोझा उतरा, and I don't have to do it anymore now. Thank God, and before I took this, I just when I was like, before I started for this, and I said, just need to check हुआ है कि नहीं. So was thank you, God, let me have the best solution for this, let me have the best. I hope it is done, I hope it is done. फिर देखा नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो करना पड़ेगा. And then ultimately it came to this, I said, finally वो काम हो ही गया, मेरे को नहीं करना पड़ा, somebody else will be doing. Thank you. I'm so happy it is done by somebody else now. But that takes up a lot of my energy, I really feel, I really don't feel like doing that. और ऐसा काम जो आपको करना पड़े, आप नहीं करना चाहते हो ना, then it really drains you of your energy. So I'm so grateful. Thank you. Chaliye. So Thank congratulations. One more congratulations. Right. Thank you. One more. Thank you so much. Thank you. Bye. Chaliye, see you all then Yeah. tomorrow. Bye-bye.